Yep. So good evening, my dear friends. Myself Rushikesh Pandey, and I am the technical head of Engineering Students Club, which is ESC and funded by AICT under Spices in association with the Training and Placement Department of our college, Suryodaya College of Engineering and Technology, and proudly I am the student of Computer Engineering Department, third year of Suryodaya College of Engineering and Technology. The peer learning session day 5 today is consist of intermediate level, means we are going to see what are the intermediate skills required for a C programmer. Not to confuse with the other programming and just a single type of programming. We will clear all the things such as user base, multi-user systems, single user systems, use cases, conditions, looping, infinite states, and some concepts which are asked are or the which are going to ask in the interviews and such test. Okay. Even one from uh, computer engineering department, one from electrical, or from any other like civil, mechanical, or any core branch, even, so they can go into the IT fields. Like so when we go into that field first time, any field, we go first time, so observe, and the observation skills are depend on our best practices which we got from our past experience. Okay, so the experience is also required by company. If one has no experience, then they are called as fresher or new, और भी वर्ड्स रहते. अरे ये क्या हो गया, सॉरी. um wait a sec. Mm, okay, sorry from my side. सो जब ये वर्ड्स रहते तो इनको ना जारगन्स, JARGONS, ऐसे जारगन्स करके बोलते. तो सिंपली अगर अपने स्टूडेंट लाइफ के इसमें ध्यान में रखना है तो इन चीज़ों को कैसे याद रखेंगे. जारगन है, अगर अभी जारगन नहीं पढ़ेंगे तो फिर कंपनीज में प्लेस होने के लिए जागरण करना पड़ेगा 2 दिन पहले, जैसे पेपर के 2 दिन पहले से करते हैं अपन जागरण. सो learn the things in such way that we got remember. Our past experience is the key to future success. Okay. अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो फ्यूचर में सक्सेस रेट हमारा हमें प्रिडिक्ट नहीं करते हैं बराबर. सो ट्रेनिंग इन चीज़ों की कंपनी में मिलती है, बट इफ वी गॉट द ट्रेनिंग बिफोर the company hires us, then for sure we are going to make a big win or win a higher position in such a company. अगर कुछ लोग ही रहते हैं ना, ड्रीम कंपनी रहती है. टेक एग्जांपल, ये गूगल मीट पे हम क्लास ले रहे हैं, हो सकती है किसी की गूगल ड्रीम कंपनी, या सो तो कुछ लोगों की ना ड्रीम कंपनी वगैरह रहती है, तो उन लोगों को अ, उसके हिसाब से रहना चाहिए. अभी तो फांग कल्चर चल रहा है, FANG. अभी तो F का M भी हो गया. फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल. तो फांग कल्चर में जाना है तो, बट किसी भी चीज़ में जाना है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ की. इफ वी आर नॉट टेक्निकली साउंड, देन देयर इज also no problem. We can learn those skills, but some other skills are required, like soft skills, that aptitude,
है ना? तो अगर एप्टीट्यूड वगैरह का राउंड नहीं क्लियर करते हम लोग, तो क्या होता है, वो कंपनी पहले ही देखती है, अरे ये तो यहीं पे अटक गया। आगे इसको ऐसा रोल दे रहे थे हम कि ये दूसरों को क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट ये खुद ही सॉल्व नहीं कर पा रहा उनके आंसर, भले ही वो गलत आंसर्स रहे। देखो, आंसर सॉल्व करना एक अलग चीज होती है, एंड एक प्रॉपर आंसर निकालना, बट आंसर सॉल्व करते आना चाहिए। तो सम थिंग्स लाइक दैट। एंड कुछ कंपनी आज तो ज़्यादा ही कल्चर चल रहा है कि विदाउट डिग्री हायर कर लेती है। प्लस कुछ बिग टेक कंपनीज सच एज और मोस्ट सोशल नेटवर्क, the electric vehicle, um, the biggest electric vehicle maker, Tesla, Facebook, and Google also. So there are some courses कि वहाँ से करेंगे ना तो जल्दी वहाँ पे प्लेस हो जाएंगे. So be aware of that. If one day we are not updated, then your job is taken by another, or the bite you are going to eat in that company, it is taken by another person. Okay. um, एक एग्जांपल दे दो इसके लिए, अगर आप लोगों को जावा के बारे में पता है, आई एम नॉट श्योर कि सभी को पता होगा। हाँ, इन किसी ने सुना होगा, कोई अगर फील्ड में है, उसके ट्रेनिंग उसमें, उसके लर्निंग में है, तो जावा इज डे टू डेज लाइफ, उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इम्पोर्ट वगैरह आता है। बट अगर जावा नहीं पढ़ा है तो जावा के फील्ड में कैसे जाए? नहीं जा सकते ना जावा के फील्ड में, ऐसा लगता है। बट जो जिनको जावा पता है, वन सिंपल क्वेश्चन, हैव यू हर्ड अबाउट द लॉग 4j, LOG 4j, या फिर log4j2? The comments session is here, the unmute is also possible. नहीं आते तो नहीं बोल दो, अपन कंटिन्यू करेंगे जल्दी। एनीवन सुना होगा तो अच्छी बात है। Even if you are not telling, it's a good thing if you know about that, and if you are going to explore about it, then all the best. If अगर वहाँ पे भी कुछ हेल्प लगती है तो यू हैव अ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, और मैं तो पर्सनली भी रिप्लाई तो बहुत बार। तो यस, बॉस ऐसा चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुमने जस्ट अभी सर्च करके भेजा होगा या फिर सुना भी होगा, तो वो मोस्ट यूजफुल थिंग है। तो लॉगिंग सॉफ्टवेयर है log4j, क्या करता है, जो भी अपने जावा में ना लाइब्रेरीज रहती है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ना अपन ने कुछ फाइल्स वगैरह ऐड किए थे, इसको देख लिया ना, इंटरमीडिएट लेवल। तो ये आज का काय के लिए होगा, ये बता भी दिया शुरुआत में। इधर है क्या? नहीं है, सॉरी। हैज इंक्लूड stdio.h, बराबर। तो ये एक फाइल ना लाइब्रेरी की फाइल है, वो अपन ने इंक्लूड किया। अभी इसके साथ में मैंने ये भी बोला था कि अगर अपनी कोई लाइब्रेरी की फाइल है तो आप हमें अगर कोई फाइल बनानी है तो वो भी हम बना सकते, बराबर। ग्राफिक्स के लिए graphics.h है। अभी मुझे लगेगा कि चलो मैं तो अभी थोड़ा अच्छे से सी लैंग्वेज सीख लिया और मैंने एक दो फंक्शन बना लिए, अभी मुझे उसको वर्ल्ड को दिखाना है, तो मैं एक वेबसाइट पे या फिर कहीं पे भी, या फिर मेरे फ्रेंड्स को ऐसी एक फाइल शेयर कर दूंगा, उनको बोलूंगा उनके पाथ में डालने के लिए, फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए, एंड दे कैन यूज इट। ऐसे .h यानी कि हेडर फाइल रहेंगी, बराबर। अगर यहाँ पे कोई PHP में प्रोग्रामिंग करता होगा या फिर PHP का कभी सोर्स कोड देखा होगा ना, उसमें मैक्सिमम तो हेडर फाइल्स ही है, बिकॉज PHP इज बेस्ड ऑन द C लैंग्वेज, मोर और लेस और completely. सो ये फाइल इंक्लूड होती है, बराबर। एक मतलब एक्सटर्नल एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है, वो होता है। वो अपन यूज़ करते हैं अपने इसमें, ताकि अपना काम आसान हो सके। अभी log4j के लिए यूज़ होते हैं। तो एक लॉगिंग सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, लॉग करके रखते हैं, एक लेके डेटाबेस में एंट्री मार देता है।
फाइल सिस्टम में चाहिए क्या, फाइल सिस्टम में एंट्री मार देगा, ठीक है। तो ऐसा एक लॉगिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी ये एक वही टेक्निकल जागरण है। वल्नरेबिलिटी मतलब एक कमी रहती है उसमें, कि एक सॉफ्टवेयर में कमी किसी ने ढूंढ निकाली। अभी वो जो कमी ढूंढ निकाली, बंदा चुप नहीं बैठा, बता दिया सबको, अभी सबको बता दिया। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन, यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी सोच लो 5 बिलियन, बराबर। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग पीपल 500 मिलियन, उसमें मोर टेक्निकल 100 मिलियन, उसमें एकदम बेस्ट जो है 50,000 लोग हैं। तो 50,000 लोग हैं, उनको इस वल्नरेबिलिटी को अलग अलग वेबसाइट्स में ढूँढने के लिए, अलग-अलग एप्लीकेशंस में ढूँढने के लिए जो कि ऑनलाइन है, उनको टाइम लगेगा क्या? वो तो 50,000 है, ब ब जबकि 5 बिलियन यूज़र्स का वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट ए बिग डील। तो ऐसे एक्सप्लॉइट हो रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड में एक्सप्लॉइट होना, बराबर। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट 500, ऐसे सोच लो, 5 बिलियन पीपल यूज़ कर रहे हैं, 5 बिलियन क्यों, 2 बिलियन ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसे समझते हैं, बिकॉज़ फेसबुक के यूज़र उतने ही है। 2 बिलियन यूज़र है इंटरनेट के, और 50,000 यूज़र काफ़ी है उन लोगों को, उम, अ, मतलब अलग-अलग दुःख देने के लिए उनको, बराबर। तो ये क्यों हुआ है? इंटरनेट, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे डाउन साइड्स भी है, अप साइड्स भी है, बट टेक्निकल नॉलेज हैविंग, तो ये एक अप साइड रहता है। एंड अगर कोई एक दिन भी पीछे है, बराबर। टेक एन एग्जांपल, मेरा एक वेबसाइट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पे कुछ एसेट्स है, कुछ चीज़ें होंगी। एक दिन के लिए मैं मस्त, फ्राइडे था, फ्राइडे को उसमें एक नया अपडेट डाल दिया, संडे को टेस्ट वगैरह रहेंगी, तो उसमें कुछ बग आ गया, या फिर ये लॉक 4j का आ गया उसमें, तो कोई एक्सप्लॉइट कर रहा। मेरा इतने मेहनत से बनाया हुआ एप्लीकेशन एक लाइब्रेरी की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा डेटा वो लेके चले गए, बराबर। मेरे सर्वर भी क्रैश कर दिए, डेटा लेके गया, यूज़र का नुकसान हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, मेरा भी नुकसान हो गया। अगर वो सर्वर के डेडिकेटेड होंगे एंड किसी और के पास होगा, वो तो बोलेंगे भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट की वजह से मेरा सर्वर जल गया, एज अ टर्म्स आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा सर्वर का। जब मैं उसको साल के 2 लाख रुपए दे रहा था सर्वर के, मुझे पूरे सर्वर के पैसे देने पड़े, 10-12 लाख रुपए, बराबर। तो ऐसा हो जाएगा। तो टू इंश्योर द थिंग्स, है ना, तो एक साइबर सिक्योरिटी नाम की एक ब्रांच आ गई है उसके लिए। तो वो लोग क्या करते, डेली अपडेटेड रहते, डेली का एको, मिनटली बोलो कि जैसे ही कुछ आया ना, तो वो देख लेते। तो ऐसी अलग अलग ब्रांचेस है। तो सी लैंग्वेज मेनली डील्स विद द कर्नल, यानी कि जो कोर पार्ट्स रहते हैं ना कुछ, उनके साथ में। उसके बाद एक चीज रहती है यूजर का एक्सपीरियंस, बराबर, यूएक्स बोलते हैं उसको। अभी आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, ये यूआई है, थोड़ा अच्छा बना हुआ है, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे टिके रहते हैं। बट अगर ये यूआई एकदम थकेला हो, है क्या कुछ ऐसा? ऐसा है ही नहीं, इस स्लाइड में तो है ही नहीं ऐसा थकेला यूआई। तो अगर थकेला यूआई रहता ना, हाँ ऐसा ही कुछ रहता ना, तो देखो, मतलब ये पढ़ने में नहीं आ रहा अच्छा सा इतना, कोई रहेगा क्या? तो यूआई यूएक्स भी है। सो व्हाट द थिंग यू आर गोइंग फॉर, डू ए रिसर्च, उसके लिए अपने जी जान लगा दो एंड अपडेट डेली रहो, यही बोलना था। ओके। सो सी लैंग्वेज के बारे में ऐसा नहीं है, अभी तो अपन C99 का वर्जन यूज़ कर रहे, GCC 14 है, फिर GCC 16 में। तो नो वरीज। आज क्या देखना था, इंटरमीडिएट, तो मैंने साइबर सिक्योरिटी वगैरह का बता दिया। एंड जो पॉइंटर नाम का कंसेप्ट है सी लैंग्वेज में, दैट आल्सो डील विथ सर्टन साइबर सिक्योरिटी के साथ में वो करता है, बराबर, बिकॉज रैम की वो लोकेशन उठा सकता है। तो आज के कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पे, 32 कीवर्ड्स है, कौन कौन से यूज़ करेंगे। एक तो मैंने बोल दिया इफ कीवर्ड, मतलब एक देख लेंगे, एक स्विच केस में वो आ जाएगा, स्विच केस आ जाएगा, ब्रेक भी आ जाएगा, कंटिन्यू भी आ जाएगा, और डिफॉल्ट भी। उसके बाद है स्ट्रक्ट एंड इनम,
इनम और यूनियन, बराबर, यही होगा। तो ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स है, ये आज देखेंगे। और डेटा टाइप्स में वो सबसे पहले देख लेते, स्ट्रक्ट था ना यहाँ पे। तो अगर आपने गो थ्रू किया होगा, जो मैंने ऐसे एक प्रोग्राम भेजा, दैट प्रोग्राम इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। सो बस वो एक इसके लिए है कि अगर आपको डेटा पहुंचाना है तो आप अच्छे वे में भी पहुंचा सकते हैं, मतलब एक कोडिंग के वे में। तो नंबर और कैरेक्टर का जो डेटा टाइप है वो हमने देख लिया है, उसका वर्किंग भी देख लिया है, बराबर। उसके बाद में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स रहते हैं, तो इनको डिक्लेयर कैसे करते, यूज कैसे करते, एंड इनका ये क्यों बनाए गए, मतलब गरज ही क्या थी। हाँ, अभी मैंने बताया ना लॉक फोर जे था, तो लॉक फोर जे टू भी आ गया। लॉक फोर जे टू क्या है, उसमें पैचेस है, नहीं, लॉक फोर जे टू नया वर्जन है, और वन में कुछ पैचेस वगैरह होंगे, तो दैट वे। तो ऐसी चीज़ें रहती है। तो यूज़र डिफाइंड मतलब वो न्यू वर्जन या फिर नेक्स्ट वर्जन क्यों आता है, तो जो पिछले इसमें कमी रह गई थी उसके लिए न्यू वर्जन आता है। इसीलिए हर बार दिवाली आती है, हर बार वो रावण को जलाना आता है, एंड हर बार 14 फरवरी आता है। ओके, तो यूजर डिफाइंड। सो आई एम गोइंग टू ओपन माई कोडिंग स्क्रीन, गिव मी 10 seconds। सो आज का अलग दिख रहा है थोड़ा यूआई, जो मुझे तो अच्छा दिख रहा है। सिर्फ इस पे कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5वां दिन है, अभी भी फ्रेश फोल्डर ओपन क्रिएट किया मैंने। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ये देखो, ये स्पेस है, यहाँ पे न्यू फोल्डर या फिर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, भाई देखेंगे ये क्या। ओके, तो और एक चीज़ मैंने बताया था ना यहाँ पे, अब अपन एक छोटा सा ये करते हैं, readme डॉट एम डी, मतलब readme डॉट मार्कडाउन, मार्कडाउन, बराबर। तो ये मार्कडाउन का कैसा है, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। मैं इधर ना ऐसे हैश लिख के डे 5 लिखूंगा ना, तो ये हेडिंग 1 में आ गया। अभी इसके नीचे में ऐसा डैश करके कुछ लिखूंगा ना, तो ऐसा आ जाता है। मतलब एक फॉर्मेटिंग मेरे लिए अच्छे से कर दिए भाई ने, उसने इंटरनली कुछ कर दिया है, बराबर, प्रॉपर थिंग है। एंड दिस थिंग, टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क। देखो, ये चीज़ है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, बराबर। ये डे 5 मुझे लिखना पड़ा, ये लिस्ट के ये बुलेट्स वगैरह लगाने के लिए हो जाएगा। हाँ, एमएस वर्ड वाला कोई पर्सन होगा या फिर बोलेगा कि एमएस वर्ड में तो ऐसे ही होता है, तो भाई वो भी एक सॉफ्टवेयर है, एंड उसका भी जो फाइल बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कोडिंग के इसमें बनता है, बराबर। तो आजकल वर्ल्ड को ऐसे जाना है, देखो, ऐसे, ना कि इतने चीज़ को करने के लिए एक हाँ, ये तो मैक्सिमम HTML में एक्सपोर्ट कर देते हैं अपना कोड, तो HTML में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है। ओके, तो डे 5 का ये प्रारंभ करते, न्यू फाइल डे 5 डॉट सी, वही अपना एक्सटेंशन यूज़ कर दिया। गोइंग टू डीपर थिंग्स, अगर, अरे और एक बोलना था यार, आज का जो चौथा वीडियो अपलोड किया है ना, मतलब परसों के इसका, एक भी व्यू नहीं है उस पे। ऐसा थोड़ी है कि प्लेलिस्ट में पहला ही वीडियो देखना चाहिए, पहले वीडियो पे ज्यादा व्यूज थे, मैंने मॉर्निंग में चेक किया, एक भी व्यू नहीं था। शायद अभी पढ़ के होंगे। वही अपना सिंटैक्स, देखो, दिस इज आईडी, एंड ये थोड़ा अच्छा है तो लगा दिया मैंने ऐसे ही। अच्छे से, बार की गलती, एस टी डी ओ डॉट, अच्छा,
उसके बाद में क्या है ना, वही इंट मैन। यहाँ पे एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जैसे मैं ना ये यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एक लाइनक्स एनवायरनमेंट में, बराबर। तो ये ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि सबके पास में फिर यही होगा, या फिर इतने मतलब कोई इंस्टॉल किया होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद जैसे ही ये प्रोग्राम हो जाता है, मैं विंडोज़ में ओवरा टर्बोसी का सेटअप वगैरह कैसे, वो एक बार बता दूंगा। या फिर टर्बोसी के अलावा विंडोज़ में ही VS कोड में कैसे रन करते हैं। एंड कल जब स्टार्ट करेंगे ना, तब मोबाइल वाला देख लेंगे, एक एंड्रॉयड में कैसे करते हैं। तो वही अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन गलती, देखो, जब वो अपन मल्टीपल चीज़ों में कोडिंग करते ना, तब गलती हो जाती। कौन सा सही है? सॉरी फ्रॉम माय साइड, नेटवर्क ज़्यादा इशू दे रहा है। तो कहाँ पे थे? हाँ, ये पूछा था किसने, मुझे भी नहीं दिख रहा अभी। तो पर नेमिंग और एक नॉमेनक्लेचर इसमें का प्रॉपर होगा, तो मेनली तो ये वाला होना चाहिए, बिकॉज अगर इसको क्लोज कर देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर है, इसको हटा देंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसे रेस में किसी का पैर खींच देंगे अपन, वो पीछे हो जाएगा, तो वैसे ही ये वाला आगे चला जाएगा। अभी ये तो आगे था, इसको साइड में हटा दिया अपन ने, फिर ये जीत सकता है, बराबर। तो प्रोग्रामिंग में भी सेम होता है, जब एक चीज़ काम नहीं करे तो अपन दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर रेस किसके बीच में होती है, डेवलपर के माइंड में, ठीक है, नॉट ठीक। तो सेव करेगा तो
Mm, mm, Thank you guys for waiting. नेटवर्क चेंज कर लूँगा मेरा। तो ऐसे इंट में मैं क्या डालूँगा, इंट में नंबर, कैर में नेम, कैर मतलब वो कैरेक्टर है जिसका शॉर्ट कर दिया है कैर। उसके बाद में ये तो मेरा एक इसमें हो गया, बट अभी देखो मुझे ऐसा एक वेरिएबल देना है, स्टूडेंट। तो ये तो अभी ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट मुझे ये काम करना है तो बराबर। व्हाट इज हियर स्टूडेंट, मतलब मेरा डेटा टाइप बनाना है, तो वही करना है हमें। वो करते हैं अपन स्ट्रक्ट में, स्ट्रक्ट यानी कि स्ट्रक्चर में। एंड वन प्लस प्लस वन थिंग कि जब हम स्ट्रक्चर को ये करते ना, बना लेते, पहले बनाते उसके बाद में बताएंगे कैसा है। अभी हम सब लोग इतने तो ट्रेन हो ही गए होंगे कि सी लैंग्वेज में जब भी कोई चीज़ करते तो उसके लेफ्ट साइड में एक कीवर्ड लिखते हैं, एंड वो कीवर्ड डिफाइन करता है वो कैसा होगा। अगर वो पर्सन साइकिल, यहाँ पे साइकिल्स का एग्जांपल ले रहे थे। सो दिस थिंग, अगर ऐसा होता है तो एक दिमाग में चलता है, बट उसी के साथ में जब क्लॉज देखते पर्सन के, तो मतलब तब एक ज़्यादा ओवरव्यू लग जाता है ना। एंड देन उसके बाद में जब टॉकिंग वगैरह देखते तो उससे आ जाता है, बट प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड की, तो सो अगर प्रोग्रामिंग में मतलब किसी भी एक सिंगल लैंग्वेज में बोलो या फिर मल्टी यूज़र सिस्टम में अगर थोड़ा मास्टर बनना है, अगर मास्टर नहीं बनेंगे ना तो जब इवन वन गोज़ टू कंपनी, तो आपको वही लेवल ज़्यादा देर तक पकड़ के रखनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो वो जल्दी नहीं मिलता है। सो बी मास्टर इन अ थिंग, ठीक है। एंड ऐसी जो गलतियाँ है ना जो यहाँ पे हुई थी एनयूएमईआर, तो ये गलतियाँ तो आजकल के सॉफ्टवेयर डायरेक्टली पकड़ लेते। एंड अगर ऐसी कोई गलती एक पर्सन करता है ना तो उम, वो ध्यान में रखा जाता है, बिकॉज़ आज के जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें वर्किंग ऐसे होता है। एक आध दिन अगर मुझे टाइम मिला, टाइम मीन्स कि दैट पार्ट में टाइम की वो वर्क कैसे होता है, मैं आपको लाइव दिखा दूँगा एक आध दिन। तो स्ट्रक्ट एक लेफ्ट साइड में वो कीवर्ड लिख लिया स्ट्रक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर है, पता चल जाएगा कंपाइलर को। स्ट्रक्ट का अब स्ट्रक्चर का नाम क्या देना है, अभी एस कैपिटल दिया है बराबर, तो एस कैपिटल यूज़ करना पड़ेगा आगे में। उसके बाद में ये ऐसा रहता है, उसने ऑटोमेटिक स्मॉल कर दिया था, ठीक है। उसके अंदर है ब्लॉक। अभी ये जो ब्लॉक है इसी के अंदर पूरा कोडिंग का कंसेप्ट है बराबर। ये स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है ये ब्लॉक के अंदर में ये इसका लिखा जाएगा। तो अभी इस स्टूडेंट ब्लॉक के अंदर क्या-क्या रहेगा? फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ था उसी को अपन पलटा देंगे वहाँ पे। लो भाई पलटा दो।
कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी पलटा दिया। अभी देखो, ये एस कैपिटल है, अभी ये आईडी है इसलिए ये ग्रीन में दिख रहा है एंड ये वाइट में है, एंड इसके ये भी रेड लाइन भी है। तो क्या हो जाएगा, ये भी ग्रीन में आ गया। सो डिक्लेरेशन वैलिड नहीं है क्या? एक सेकंड, सेमीकोलन भी तो दे दिया। इसके बाद में इसको देखते रहते हैं। क्या पता अभी कुछ तो भी गड़बड़ हो गई होंगी, तो इतना कौन ध्यान देगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखना है। अब ये स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया अपना, बन गया। हाँ ये बन गया, इसका मतलब क्या हो गया। टेक एन एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आजकल आईपीओ आईपीओ बहुत सुना है बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग वेडिंग भी करते होंगे, और अ, लखपति भी बन गए होंगे, है ना। तो क्या होता है, ट्रेडिंग में एक कंपनी जो है वो बनती है, बराबर। उसके बाद में कुछ नॉर्म्स गवर्नमेंट के वो देन टैक्सेशन, उसके बाद वो शेयर मार्केट में उतरती है, बराबर। देन फिर उसका ए आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो क्रिप्टो वाले लोग होंगे वो बोलेंगे हमारे लाइफ में तो आईपीओ नहीं आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो वो क्रिप्टो जो रहती है क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है, एंड जो कंपनीज रहती है जब वो स्टॉक में लिस्ट होती है तो वो पब्लिक ऑफरिंग करती है, तो स्टॉक का प्राइस वगैरह कुछ रहता है। सो ऐसे ही समझ लो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये बन गया। मतलब एक कंपनी बन गई, कंपनी यहाँ पे पकड़ लो, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट। ओहो अच्छा नहीं दिख रहा है ये। देखो, ये जो है ना, ये अंडरस्कोर के बाद में सी कैपिटल है, ठीक है। अभी ये जो कंसेप्ट है ना, इसको भी नाम दिए गए। भाई क्या चीज़ है यार प्रोग्रामिंग, जिसको चाहे उसको नाम दे देते। रियल लाइफ में करके देखो, थप्पड़ पड़ते हैं हर बार। तो बट प्रोग्रामिंग में अपन कर सकते, बिकॉज इसे हम प्रोग्राम कर सकते। एंड फन फैक्ट कि जावास्क्रिप्ट नाम की जो लैंग्वेज है वो, है ना, वो बनाई थी नाम नहीं याद आ रहा उनका, 10 डेज में बनाई गई थी। और वो सीखने के लिए अगर एक मतलब कंप्लीट सीखनी है अभी, तो ऐसे समझ लो 3-4 साल आपको प्रैक्टिस के साथ में करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे मास्टर बन सकते सी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में, जिसको जेएस बोलते। तो ये कंसेप्ट भी वहीं से उठाया मैंने। सो देखो, जब अंडरस्कोर रहता है ना, तो उसको स्नेक केस बोलते हैं, बराबर। ऐसा, तो स्नेक की तरह सरपट्टा हुआ जा रहा है, रेप्टाइल की तरह। उसके बाद में है ऐसा, इसको नाम होगा मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसा, ये है कैमल केस, स्टूडेंट कम्युनिटी। अभी इसमें क्या है, स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ कॉलेज, देखो एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, कम्युनिटी का सी कैपिटल, बस सब चिपक के है। तो वो कैमल का पीछे का रहता है ना, वो पीठ पे, तो वो ऊपर नीचे होता है। इसी के वजह से उसके पीठ पर अपन लोग अच्छे से बैठ सकते हैं, एंड जो भी कोई चीज़ होंगी। तो इसकी वजह से कैमल केस दिया। अभी मैं तो यार अपने मतलब थोड़े गांव साइड से हूँ ना, तो क्या होता है, मेरे दिमाग में ख्याल आया था जब मैं वो कंसेप्ट पढ़ रहा था। हाँ बराबर है, उधर के लोग हैं यूएस के, इसलिए कैमल लगा दिया इन्होंने।
उनके पास में गाय भैंस रहती तो वो बेल केस लगा देते, है ना? मतलब बेल बफेलो केस ऐसा कुछ लगा देते। बफेलो ही नहीं बोलेंगे उसको, बेल बोलेंगे। बुल केस, ठीक है। तो ये बुल केस रहता था, बट इसको कैमल केस बोलते हैं। और एक दिस इज सेंटेंस केस, ओके। एंड जब एक ही चीज ऐसी रहे एंड बाकी सब स्मॉल में रहे, तब भी उसको एक नाम है। दैट विल बी इन द नोट्स, आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा डीप में गए। तो अभी क्या हो गया, ये तो कंपनी बन गई अपनी। अभी इसको क्या करना है, एक लिस्ट भी तो करना है ना। मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर वगैरह सब बन गया है। अभी उसको लिस्ट करना है गवर्नमेंट के पास कि हमें ये प्रोजेक्ट वगैरह, ये चीज़ वो चीज़ चाहिए। तो वो लिस्ट करने के लिए कहीं पे तो कॉल होनी चाहिए ना। कोई बड़े पर्सन अगर बोल देंगे तो, नहीं तो फिर एक ब्रांड एम्बेसडर रख दो बड़े पर्सन को, उनको पे करो, वो अपनी मार्केटिंग वगैरह बाकी के काम थोड़े बहुत हैंडल कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ होती है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे डालेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट नंबर कैर नेम। अभी का इतना ही रखते, नॉट टू गो दैट। उसके बाद में ना वो स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स मिल जाएगा अपने को। यहाँ यहाँ पे तो कितना बाइट यूज़ करेंगे वो भी दिखा दिया। ये अच्छी चीज़ है। ओहो। इंट कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ नाम दे रहा। मुझे सिर्फ ये देखना था। हाँ देखो, साइज भी दिखा दिया अभी। ये ये तो एक लाइफ हैक हो गया यार अपने लिए। देखो, साइज 20 बाइट्स ऑटोमेटेड इसने कैलकुलेट करके अपने को बता दिया। एंड ये कंपाइलर जो है ना इसके अंदर का इंस्टॉल्ड, वो सी लैंगडी का, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है शायद। तो देखो, साइज 20 बाइट्स है। अभी ये ऐसा क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आ गया, बराबर, एंड अगर इसकी प्रैक्टिस हमें है, बराबर, तो वी आर गोइंग टू क्रैक दैट एट अर्ली स्टेज। हाँ, अभी मैं ऐसा मत सोचो कि सब ऑनलाइन एग्जाम है तो यहाँ के टाइप करेंगे, उतना टाइम नहीं रहता है। तो प्रैक्टिसिंग के लिए 20 बाइट्स आ गया ना, गुड थिंग। तो अभी 8 बाइट्स का है। अभी इसको कॉल करना है, कुछ का ही तो भी सिंटैक्स होगा इसका। S1 ऐसा रहता है शायद। उसके बाद में इसको कॉल करेंगे। वो आ गया भाई। अभी ना उसके अंदर डेटा स्टोर करके एक्सेस करके देखते हैं। एक प्रिंट एफ देते हैं। और कुछ नहीं देना है। एक्सलेशन, एक्सलेशन ये कुछ डीलिमिटर बोलती है इसको, ताकि कुछ कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट आ सके। एंड इन सब के आस्की कोड्स रहते हैं। देखो, अभी इस प्रोग्राम को ना ऐसे हाथ से लिख रहे हैं, बट व्हेन वी गो डीप, या फिर जब अपने को आएगा ना अच्छे से, तब अपना वन नहीं रहता है इसके जगह पे रहता है। ये तो वो लोगों को होगा ना, मतलब अभी मुझे पता नहीं, इंटरेक्शन अपना ज़्यादा हुआ नहीं है तो, बट बहुत सारे लोग मुझे लगता है अपने अपने फील्ड्स में, मतलब जो भी लैंग्वेजेस है उसमें तो मास्टर है बहुत लोग। तो सी लैंग्वेज में आई और जे यूज़ होते हैं, बराबर। बाकी लैंग्वेजेस में ना कुछ इसमें फू बार, कुछ में स्पैम एक्स ऐसे यूज होते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू स्टिक टू दैट थिंग, बिकॉज जब सेम पर्सन वो आबाजी का कोड देखेगा ना, मतलब 60 65 या फिर ऐसे कुछ ईयर के, तो कैसे होता है, उनके भी कोड्स कभी कभी देखने पड़ सकते हैं किसी इसमें चले गए तो।
तो फिर वो भी एक चीज़ है। इधर गया। अरे स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। तो उनका भी कोड समझ में आना चाहिए या फिर उस चीज़ के थिंग्स आने चाहिए, तो वो चीज़ यूज़ करना बेटर है। अभी तो स्टैटिक बना रहे हैं ना। व्हाट आई एम गोइंग टू स्कैन। दिस थिंग इज कॉल्ड ए डेटा स्ट्रक्चर। देखो ये स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर तो समझ ही गया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होगा, बट जब एक चीज को हम ऑप्टिमाइज वे में ले रहे हैं, अभी ये तो S1 है, एक ही है, लेकिन जब मल्टीपल रहेंगे ना तब ये थोड़ा अच्छा रहेगा। हो गया, हो गया। अभी फॉर अपने के लिए। तो देखो ना सही दिखता है, तो ऐसे कमेंट वगैरह करके रखेंगे तो कोड इज बेटर, कोडिंग इज बेटर विद कमेंट। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे एक ऐसे इस टाइप से लेते हैं अपन। देखिए नेम, नेम और मार्क्स, मार्क्स ही तो है। हाँ यहाँ पे एम्परसेंड देना पड़ेगा, एंड नहीं। ओहो, हो गया। प्रिंट भी करेंगे। इस वन लिखेंगे ना, प्रिंट। ये क्या था अभी, प्रॉपर वे दिखाने के लिए, मतलब जो भी सेंटेंस लिखना है, एंड एज वी नो कि ये फॉर्मेटेड है, तो इट्स बेटर। मैंने पहले ही बताया, अगर कोई चीज़ मिल रही है एंड उसके लिए और पे नहीं करना है या फिर और एफर्ट्स नहीं लेने हैं, तो यूज़ करो उस चीज़ को। कैसे यूज़ करेंगे, वन डॉट मार्क्स, सेमीकोलन, सेमीकोलन भूलना नहीं। वो सेमीकोलन भूलना मतलब बर्थडे भूलना होता है। अब क्यों करेंगे यार, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन नहीं। थोड़ा ग्रामर तो आता है मुझे, वो भी लगा लूँ। परसेंट डी में मार्क्स लिए तो परसेंट डी में से स्टोर होंगे, एंड परसेंट डी में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अपन यहाँ पे भी थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, परसेंट डी में डेटा स्टोर करेंगे और कुछ अलग इसमें प्रिंट कर देंगे। एक बार फॉर्मेट और कंट्रोल शिफ्ट है, ओके दोनों चलते हैं। प्लस वन मोर थिंग, अगर कोई पर्सन ये कर रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो वी एस कोडियम या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स वाला बनाया हुआ है, ये वेब टेक्नोलॉजीज में या फिर जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, ऐसे बताया था ना मैंने।
अगर कोई पर्सन इसका आंसर बताएगा तो एक बेटर चीज़ है कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, बराबर, तो क्या हुआ, ये नीचे का ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट है, ठीक है। बट क्या हो गया? मैं मेरे ब्राउजर में कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ तो या ऐसा कुछ ओपन हो जाता है, तो ऐसा क्यों उसमें नहीं होता या फिर क्यों होता है, वो मुझे बताना, ठीक है। ऐसे समझ लो ये आपका एक टास्क है, जो बताएंगा आ, उसको अपन मीटिंग में एक दिन के लिए होस्ट बना देंगे, ठीक है। तो बताने इसका आंसर, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते। पहले तो जाना पड़ेगा इसके डायरेक्टरी में, थोड़ा कॉमन सेंस अभी तो इतना आ गया मेरे पास कि मैं डायरेक्ट फाइल नेम पे ही जाके क्लिक करूँगा, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, ये जिस डायरेक्टरी में है वो तो ओपन होना ही है, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ये हो गया ओपन, बट अपने को अलग वाला चाहिए, एस एच, अपना एस एच बना लेते हैं, पुराने क्लोथ्स, ठीक है। शेल में अपन आ गए, पुराने शेल है, बिकॉज ज़्यादा फीचर चाहिए नहीं अभी, वो आ गए ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा बताने में। तो पुराने वाले छोटे से फीचर्स, ये प्रोग्राम करेगा क्या, मुझे भी आइडिया नहीं अभी तो वर्क करेगा भी या नहीं, बट करते हैं अपन, कंपाइल करते हैं, जी सी सी स्टैंड फॉर ग्नू सी कंपाइलर। अभी इसमें फाइल का नाम dev5.c, डॉट सी नहीं डाला तो क्या होगा, हाँ, फाइल ही नहीं मिलेगा उसको। dev5.c, अभी भी कौनो एरर है, एलएस किया, अभी फोल्डर में गए ही नहीं, तो सी डी डे स्पेस 5 ऐसा ही है। अभी फिर से वो गलती करके देखेंगे ना कि होता है या नहीं, नहीं होता है, बट अभी अरे sorry, या कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर्स और वार्निंग, क्लियर, क्लियर द टर्मिनल, थोड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा एक नाप लेगा स्पेस, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एंटर मारा, स्टूडेंट स्ट्रक्चर, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट वन, नाम डाल दो, एंटर, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन, मेरे मार्क्स कितने होंगे, 20 मार्क हो मिलते मुझे 100 में से, ओहो, देखा, एक्सपीरियंस तो था मुझे, काम में भी आया, बट गलती हो गई कहीं कहीं पे, वो क्या गलती हो गई वो सभी को दिख रहा है, ये फॉर्मेटिंग नहीं है यार, ये देखो, स्टूडेंट वन इज द नेम ऑफ, ये तो सही है, बट यहाँ पे मैंने बैकस्लैशन नहीं दिया था, एक तो, अभी देखो यहाँ पे भी मतलब अपना सेंस काम में आता है, यहाँ पे लगाएंगे ना तो इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, बट नेक्स्ट लाइन पे तो है ये, ठीक है, बिकॉज ये किधर गया, नेम ऑफ, ये 20 के नीचे तो आ ही गया बिकॉज अपन ने ये मारा था, बट मैं अगर ये जाने दो, एंट्री मारते ना हर बार, तो यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पे भी नहीं लगाना है तो लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे लगा दें, एक कॉमन सेंस बैकस्लैश लगा दिया, तो ये लाइन प्रिंट होगी तो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे न्यू लाइन पे, अब इसके बाद देना है क्या, देखिए मतलब ही नहीं है ना।
सॉरी, ऑडिबल ना होना चाहिए। ऑडिबल, हाँ है। तो अभी देखो, मैं क्लियर मार दूँ। अभी आपने देखा है यहाँ पे, मैंने झट से ना कंट्रोल सी करके एक बटन दबाया और ये हो गया, बट कंट्रोल सी है क्या के लिए, नहीं, वो भी देख लेते हैं अभी। अपन इसको एग्जीक्यूट कर देते, एंटर। ओहो, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब टर्मिनल थोड़ा सा तो होशियार है कि एंटर है, बट कुछ वैल्यू नहीं है, तो चलो वैल्यू लेके ही मानेंगे। तो जब वसूली वाले आते तब वैसे करते ना वो, या फिर वसूली वाले वैसे करते, सेम वैसा। अभी मैंने दे दिया स्पेस, मारा एंटर। अभी दे दिया स्पेस, मारा एंटर। नहीं, स्पेस भी नहीं लिया। नाम डाल दूँ अभी, ठीक है। टॉपर, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन। क्या, 9। वो तो प्रॉपर था, बट मेरा नेटवर्क ज़्यादा ही, कुछ भी प्रॉपर नहीं आज। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ना अपने को एक दिमाग सोचा है। हाँ, ये मैं जैसे बता रहा हूँ, ये करेंगे नहीं अपन। देखो यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है, टॉपर दीदी का नाम है, वो यहाँ पे आ गया। एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट वन, बट एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन क्यों चाहिए आप? एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नेम, मतलब जो भी स्टूडेंट का नेम वो यहाँ पे छाप देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव प्रोग्राम हो जाएगा। एंड दिस कम्स अप विथ ओनली प्रैक्टिस एंड जितना अपने को एक्सपीरियंस है पास्ट का उससे। बिकॉज पास्ट को अगर देख सकते तो फिर फ्यूचर ब्राइट हो सकता ना, तो दैट थिंग। देन यहाँ पे गलती हो गई, वो गलती अभी नहीं होती है, ठीक है। Marks, टर्मिनल भी न्यू लाइन पे आना चाहिए। जस्ट अपन कंक्लूड कर देंगे थोड़ी देर में, ये चीज़ें बता दूँ मैं। मार्क्स और परसेंटेज अगर लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर स्टूडेंट का नाम देंगे वो। डॉट क्यों यूज हुआ पता है? इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज बुलाने के लिए, ठीक है। एंड जब ये स्ट्रक्चर हुआ था ना, ये स्ट्रक्चर बना था,
यही डिफाइन। किसी को भी एज नहीं पूछना चाहिए ऐसे, है ना। तो ये ऐसे करते ना अपन, 0x1000, मतलब ये हेक्स में हो जाती है, तो ऐसे। तो जब हमने S1 यहाँ पे जस्ट डिफाइन किया एंड इसके बाद ये सेमीकोलन लगाया, तो एक इसका बन गया। S2 का बनाना है तो कॉमा करके S2 होना चाहिए, हो गया। अभी जैसे S1 का स्टोर किया था वैसे S2 का स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर बन गया अपना। वो आज देखना बहुत कुछ है हमें, बट मेरा नेटवर्क नहीं सपोर्ट कर रहा है, एंड ऐसे प्रॉब्लम जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शायद आज का इतना काफ़ी है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, बट थिंग्स चाहिए थी यहाँ पे मुझे। फॉर लूप लगाना था, इसमें इफ कंडीशंस देनी थी। अपन परसों देखेंगे। टाइम भी हो गया 8:15। अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें किसी को डाउट है कुछ? ये नहीं है आज का पार्ट। दोनों डाउट है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रहे तो आप ग्रुप्स पे या फिर डीएम पे या फिर वो, और क्या चीज़ है, अरे हाँ, थोड़ा सा इधर पे ध्यान देना यार। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ये गिटहब है। गिटहब पे जल्दी सोर्स कोड आ जाएगा सारे प्रोग्राम्स का, तो यहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। अगर भूल जाते होंगे ना तो इसका वो स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड फॉलो कर देना। हाँ, ऐसा ये भी नहीं है कि फॉलो करना ही चाहिए, बट इट्स गुड थिंग। ओके, सो आज क्या क्या देखा हमने इंटरमीडिएट लेवल के लिए? कंडीशंस नहीं देखी, क्या नहीं देखा वो नहीं बताना है, जस्ट हमने स्ट्रक्चर देखा एंड कुछ चीज़ें देखी, बराबर। Yes, for any type of source code and other related things. So I told in the last class that we must copy paste the source code from trusted sites or trusted sources only. If the source code given in a such books or any old library thing, अगर कोई ओल्ड लाइब्रेरी है हमारे पास, पढ़ता है कुछ है कहीं और डिवाइस से लिया है हमने कोड, तो अगर ऐसे अपना कंपाइलर रेड कलर में कुछ शो करता है ना, तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो बी श्योर कि उसको एक गूगल सर्च मार दो कि ये गड़बड़ क्यों है, क्या है। अभी तो गूगल यहाँ पे दया है अपने लिए। दया, ये सब्जी में नमक क्यों कम है और दया कुछ तो गड़बड़ है, दोनों दया अपने को मिल जाएंगे, बराबर। तो गो फॉर दैट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। नहीं तो भाई मेरा 8 GB का रैम का नुकसान हो चुका है उसकी वजह से। एंड और उसमें ज़्यादा कर दिया था तो पूरा मदरबोर्ड ही जल गया। एंड आपके काम में आ जाएगा। अब जब लास्ट डे का करेंगे ना तो हार्डवेयर में अपन सिम का कोड कैसे भेजते एंड कैसे वर्क होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब नुकसान भी हो गया तो अपन फायदा का सोचेंगे उसमें से। तो देखते हैं अपन उसमें भी, बट मेक श्योर कि
यू यूज ट्रस्टेड सोर्सेस एंड एप्स वगैरह भी जब यूज़ करते तो देखो यार आजकल ओपन सोर्स वाले बहुत लोग हैं हियर। शुभम भैया है जो ओपन सोर्स में बहुत वर्क कर रहे। सो अगर आपको उनसे कांटेक्ट रहता होगा तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं। एंड ही इज रिस्पॉन्स, मतलब वो गुड रिस्पॉन्स भी देते हैं। और भी बहुत साहिल भी है। और ललित, मैंने जितनों से बात किया वो पता है। एंड फ्रॉम माय क्लास अभिषेक है। एंड वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं हमारे क्लास में। मतलब कैसे रहता है कि अ, हाँ, एक ये भी चीज़ रहती है कि जब हम टीम वर्क करते तो कैसा रहता है, कोई चीज़ में मैं कम हूँ, मतलब मुझे किसी को बोलना है कि अरे यार वो काम क्यों नहीं किया, बट मैं किसी एक पर्सन के पास दे दूंगा उसको जिसको आता है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रहती है। तो अगर किसी को बोलना है कि ये काम करने के लिए एंड वो मेरा नहीं सुन रहा है तो मेरे में वो स्किल्स कम है ना। अगर जिसको आता है मैं उसे बोल दूंगा तो वो प्रॉपरली करवा के लेंगे। तो वैसे हमारे अभिषेक भैया है। तो मुझे जब लगता है कि हाँ हमारे कॉलेज की कुछ ग्रुप की मीटिंग होनी चाहिए, लोग बहाने मार देते मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नेटवर्क नहीं है, तो हैंडल कर लेते। तो ऐसे स्किल्स ना हर एक के पास डिफरेंट डिफरेंट रहते। नॉट श्योर कि आपके पास हर स्किल रहेगा या फिर हर किसी के पास एक ना एक मतलब हर किसी के पास हर स्किल रहेगा, ऐसा ये नहीं है। तो अपने अंदर के स्किल्स को भी जानना चाहिए एंड दूसरे के भी जानने चाहिए। उससे कम्युनिटी का अपने बेनिफिट्स ही होते हैं। सो गो श्योर, तो ऐसी चीज़ों को आप फॉलो करो। एंड यूट्यूब पे भी थोड़े व्यू बढ़ा देना, अपने फ्रेंड्स को बताना कि यूट्यूब पे वीडियोस है। ओके, सो वी आर गोइंग टू conclude the today's session here. So the conclusion is कि ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो अपने ब्रेन में जा रहा है। अगर नहीं भी जा रहा होगा तो द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। एक थोड़ा सा डिले हो गया अपने को वीडियोस अपलोड करने में, बट अभी जो प्रोसेस है ना वो ऑटोमेटेड है। अभी देखो ये मीटिंग है, जैसे ही वो अपने मीटिंग की रिकॉर्डिंग आ जाएंगे ना, तो उसके मीटिंग की रिकॉर्डिंग आते बराबर एक कुछ ट्रिगर वाली चीज़ रहती है ना वो हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी। फिर ना मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया वीडियो अपलोड हो गई है। उसके बाद ना वो प्रोसेसिंग का रहता है, वो यूट्यूब प्रोसेस करता है कॉपीराइट वगैरह के लिए। तो उसका कंप्लीट हो गया तो वो भी मुझे बता देंगे अभी वीडियो आपके लाइव है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, प्रोग्रामिंग की वजह से। बराबर। अगर आपको उस चीज़ में देखो, भी ऐसा तो चीज़ नहीं है ना कि ये जो मैंने कोडिंग है ये सी लैंग्वेज में की होंगी, नॉट नेसेसरी। बट इसमें जो सिंटैक्स हुआ है ना वो सी लैंग्वेज के अलावा और थोड़ा सही रहता है। मतलब जो उस लैंग्वेज के फीचर्स है, आम, आप अगर एक्सप्लोरर होंगे जैसे मैंने बताया तो एक इस चीज़ को एक्सप्लोर करना क्या, फेसबुक पता है ना, फेसबुक वो पीएचपी में बना हुआ है। बट जब बनाया था तब वो पीएचपी में बनाया था। पीएचपी इज ऐसा कुछ, पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऐसा उसका फुल फॉर्म है पीएचपी का। तो पीएचपी में फेसबुक को बनाया गया था, फेसबुक के सॉफ्टवेयर को। बट फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई, एचएससी के हैक, अभी और उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी तो यूआई वगैरह भी उन्होंने बना लिया खुद का, रिएक्ट जेएस। लोग उसको सीख के पैसा कमा रहे और फेसबुक में जॉब ले रहे। बट यू गो फॉर द थिंग दैट यू नीड। ओके, सो अगर किसी को बैकएंड वगैरह का उसमें करना होगा तो गो फॉर द हैक लैंग्वेज। पीएचपी सीख के कोई फायदा है क्या, नहीं। अगर फेसबुक में जॉब चाहिए तो हैक लैंग्वेज सीखो उनकी, या फिर उनकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होंगी लिस्टेड,
तो फिर उनको सीखो, रादर देन गोइंग फॉर, मतलब वो क्राउड में कुछ ढूंढने से अच्छा है एक अच्छी चीज ढूंढ लो और फिर उस चीज में क्राउड ढूंढो। आपको क्राउड कम मिलेगा लेकिन बेनिफिशियल क्राउड मिलेगा। ज्यादा एग्जांपल नहीं आता, अभी नेटवर्क एकदम स्टेबल हो गया है। तो एक एग्जांपल देख लो। सी लैंग्वेज के एवरेज डेवलपर की सैलरी होती है 220 US डॉलर, 220,000 US डॉलर पर ईयर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैंने कैसे देखा था, आपको प्रूफ भी दे दूंगा उसका। 220, 220,000, 200,000 US डॉलर कुछ तो भी रहते हैं, मतलब 2 लाख US डॉलर इतनी सैलरी रहती है। सो मीन वाइल जब एक फ्रंट एंड डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी देखते तो वो 1 लाख, या फिर 1,05,000, 1 लाख, 1.5 लाख US डॉलर के इस आसपास रहती है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के डेवलपर को कभी भी हायर प्रेफरेंस मिलते हैं अगर वो बेटर है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ आपको तो ये मेरा एक छोटू सा फ़ोन है। उम, एक छुटकू सा मेरा फ़ोन है, ठीक है? मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा। 1 सेकंड, वो इसमें दिखा दूँ। ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता, अभी बात चल ही रही इसलिए। देखिए स्क्रीन, अरे! उम, उम, ये मेरा सिम टूल किट दिखा सिर्फ। सॉरी, सॉरी। हुँ, ये मेरा सिम टूल किट दिख रहा है। सिम टूल किट ऐसा उल्टा दिख रहा होगा बट सिम टूल किट नाम का एक चीज़ है। तो ये जो चीज़ है ना, हुँ, ऐसे भी होगा, वीडियो बंद कर दिया। तो ये जो सिम टूल किट नाम का चीज़ है ना, ये कोडेड रहता है सी लैंग्वेज में। एंड ये कोड कहाँ से उठाता है? इसको रन करने के लिए अपने इससे, व्हाट वी से, अपने सिम कार्ड के डेटा में से। ठीक है, तो उसका कोड करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो वहाँ पे डेवलपर की सैलरी कभी भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर दिस। तो गो फॉर व्हाट यू वांट, नो रिस्ट्रिक्शन। एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। अभी ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर देते हैं।